We are going to do the chapter lithosphere. Which chapter? Lithosphere. See, listen carefully. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. इसका मतलब क्या है? When he started going to school, तो क्या हुआ? उसने क्या नोटिस किया कि the only playground next to his school, उसके only playground next to his school मतलब only playground का मतलब क्या है? The only playground. मैम से Learn to understand English. If you understand, everything is easy. Only playground, only मतलब one. Next to his school मतलब playground उसके school के पास में था. Was dug up. Dug मतलब खुदा हुआ. People said that a huge building with many flats will be constructed there. What did the people say? What did the people say? Huge building. What did the people say? A huge building with many flats. A very huge building is going to be constructed there and many flats are going to come there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. Why was he sad? Why was Ravi sad? Ma'am, because Why was Ravi sad? ma'am दर्शन रवि क्यों sad था? बोलो बोलो दोनों. मैम बिकॉज वहाँ की ग्रास बटरफ्लाइज वो सब कुछ चली गई. चले जाने वाला था ना, बिल्डिंग बनने वाली थी, तो जो प्लेग्राउंड पे वो लोग खेलते थे, जो प्लेग्राउंड पे वो लोग, वो प्लेग्राउंड अब नहीं रहने वाला, वो प्लेग्राउंड अभी सो उसको मैरीगोल्ड्स याद थी, वहाँ के फ्लावर्स होते हैं मैरीगोल्ड्स, क्या होते हैं, ग्रासेस याद थी, बटरफ्लाइज याद थी. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. इन द असेंबली द प्रिंसिपल too sadly observed, see how our environment is changing. In the class, Ravi asked his teacher, what is environment? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. So this is very important. What is environment? Whatever we see in our surroundings is called the environment. Ravi thought aloud. That means the school building, table, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of the environment. Yes, said the teacher. But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees and animals. Other are made by people. For example, roads, cars, clothes and books. Now work in pairs and make a list with your classmates sitting next to you of the creations of nature and the human beings. So there are two things in our environment. One is man-made and one is man-made and one is natural. Very good. Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Now they make a list. Why is the environment changing? Asked Iqbal. It is all because of our needs. हमारी ज़रूरतों की वजह से environment change हो रही है. Very important. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? हम कैसे चेंज कर देते हैं? मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? चेंज करना. हम कैसे चेंज कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट को? द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर. हम कार यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी, कार में से जो फ्यूम्स निकलती हैं, जो जलने के बाद जो धुआं निकलता है, वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है. वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज. Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. Now you tell me, ये पूरा पेज हमने पढ़ लिया environment का, पेज नंबर फर्स्ट पेज, राइट. इसमें तो कौन से क्वेश्चन आ सकती है? मैम से यही पूछेगी व्हाट इज एनवायरनमेंट, राइट. और दूसरा ये पूछेगी क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी मॉडिफाई द एनवायरनमेंट. तो इसका आंसर हमें अच्छे से बना लेना है कि हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कैसे करने वाले. इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो एग्जाम में हमेशा नोट्स बनाते टाइम एक एक फिल इन द ब्लैंक्स को मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा जब कोर्स आएगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये याद रखना कि क्या था. इसमें सिर्फ 2 ही आंसर्स है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर. इनको अच्छे से हम नोट्स बना लेंगे ताकि इनकेस अगर मैम 4 मार्क का लॉन्ग आंसर भी पूछ लेती है तो हमारे पास बहुत सारे जवाब होंगे उनको देने के लिए. ठीक है. अब आ गया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. क्या आ गया? अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में नेचुरल और ह्यूमन मेड है. क्या है? नेचुरल और ह्यूमन मेड. नेचुरल चीज़ें कौन सी होती है? एयर, वाटर, लैंड और लिविंग बीइंग्स. ये चारों चीज़ें. हम फैक्ट्री में इंसान तो नहीं बना सकते. कभी सुना है कि चलो फैक्ट्री चलो वहाँ पे 2 बच्चे पैदा करने, आज ऑर्डर है 10 बच्चे पैदा करने का? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता ना. तो 4 चीज़ें जो नेचुरल है वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स. आधा चैप्टर यही लर्न हो जाएगा.
80% चैप्टर मैम अगर पूछेगी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट तो दो बताने, ह्यूमन और मैनमेड। बोलो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन और मैनमेड। ह्यूमन में कौन सी चार चीजें आएंगी? एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स। कौन सी चार चीजें आएंगी? एयर, वाटर, लैंड और ह्यूमन में मतलब जितनी मर्जी लिख लो, पार्क लिख लो, बिल्डिंग लिख लो, ब्रिज लिख लो, रोड लिख लो, इंडस्ट्री लिख लो, मॉन्यूमेंट्स लिख लो, स्पेलिंग लर्न कर लेना, ठीक है। अब ह्यूमन तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या हो गया? अब ह्यूमंस में हम इंसानों के बारे में कैसे ब्रेक करेंगे? इंसानों को हम एक सिंगल इंडिविजुअल में ब्रेक कर सकते हैं, फैमिली में और बड़ा, कम्युनिटी और बड़ी। फिर रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं? एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। ह्यूमन से ये सब रिलेटेड होता है, राइट। तो अब ये कह रहा है यहाँ पर, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। वेरी गुड डेफिनेशन। व्हाट इज एनवायरनमेंट? What is environment? In the place, people, things and nature that surround any living organism is called its environment. Now question 5th होगा, it is a combination of human and natural phenomena. Environment दो चीज़ों से बनी होती है, humans के और natural के, और human made मतलब man made। किससे बनी होती है? तो while the natural environment को हम क्या कहते हैं? बायोटिक या एबायोटिक? बायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोटिक एनवायरनमेंट। दिस इज 5th क्वेश्चन। व्हाट इज बायोटिक एनवायरनमेंट? व्हाट इज एबायोटिक एनवायरनमेंट? एबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। हमने अभी पढ़ाई तो था ना, एनवायरनमेंट दो चीज़ों से बनती है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो अब हम लिविंग और नॉन लिविंग फर्स्ट सेकंड स्टार्ट में करते थे, हम उसमें बायोटिक और एबायोटिक के नाम से जाएंगे। कैसे जाएंगे? जो लिविंग है वो बायोटिक है, जो लिविंग है, और नॉन लिविंग एबायोटिक है। क्या है? ठीक है। अब मैम पूछ सकती है व्हाट इज एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट को फ्रेंच में क्या कहते हैं? एनवायर मीनिंग नेबरहुड, मीनिंग, इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो 80% हमें पता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, सब नेचुरल एनवायरनमेंट है। फैक्ट्री में प्लांट्स बनते हुए देखे हैं क्या कभी? खेतों में ही तो बनते हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class, right? Let us learn some more facts about these domains. Lithosphere क्या होता है? Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. क्या होता है lithosphere? The solid crust, the solid or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. First point, lithosphere क्या है? सॉलिड क्रस्ट। क्या है? सॉलिड क्रस्ट। सॉलिड क्रस्ट का मतलब क्या होता है? हार्ड है बहुत, हार्ड टॉप लेयर। क्या होता है? हार्ड टॉप लेयर। हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्या होता है? तो सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में पहला पॉइंट क्या बताओगे? इट इज अ सॉलिड क्रस्ट। इट इज अ सॉलिड क्रस्ट का मतलब क्या होता है? द हार्ड लेयर, द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, द हार्ड लेयर। किससे बना होता है लिथोस्फीयर? रॉक्स और मिनरल से। किससे बना होता है? और किससे कवर्ड होता है? बाय थिन लेयर ऑफ, और उसके ऊपर मिट्टी होती है। उसके ऊपर होती है कि नहीं होती? तो 2 पॉइंट्स लर्न हो गए। थर्ड, इट इज इरेगुलर सरफेस। इट इज विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। इरेगुलर, ये दिख हमें रेगुलर है लेकिन ये इतना रेगुलर भी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ हल्का हल्का है जो नजर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? उसमें माउंटेन्स भी आ जाते हैं, प्लेटूज मतलब हाई रेज लैंड्स, प्लेन्स, वैलीज, ये सब आ जाते हैं। क्या आ सकते हैं? लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन द ओशन फ्लोर्स ऑल्सो। ये लैंड जो है, ये हार्ड लेयर ऑफ जो लैंड है, ये कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है और ओशन के फ्लोर पे भी पाया जाता है। सब जगह पर ये पाया जाता है। क्लियर? लिथोस्फीयर पे शॉर्ट नोट लिख सकते हैं सब। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। लिथोस्फीयर भी तो वो डोमेन है, वो हिस्सा है जहाँ पर हमें फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ, खाली लैंड होता है। ग्रास लैंड क्या होता है? खाली लैंड होता है जहाँ पर घास उगी हुई होती है और भेड़ बकरियां वहाँ पे चरने जाते। तो क्या बोल रहा है? लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। खूब मिनरल्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ, द डोमेन ऑफ वाटर इज, बस मैम ने आपको पूरे शॉर्ट नोट लिख दी। अब मैम अगर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट पे शॉर्ट नोट लिख बोलेगी तो आप क्या बोलोगे? लिथोस्फीयर पे लिखो तो आप क्या बोलोगे? पहला पॉइंट लिथोस्फीयर पे पहला पॉइंट क्या है? वेरी गुड, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड
Very good. That is made up of. Rocks and minerals. Second point, it is and it also has a thin layer of. Clay, soil. Then it is a dash surface. Irregular. Very good. Irregular surface with what kind of landforms are formed? Mountains, Mountains, plateaus, plains. Very good. And are landform found somewhere else also? Yes. Where? Continents and the ocean. Continents and the ocean floors. Ocean के नीचे भी तो एक हिस्सा होगा ना? Yes, ma'am. ठीक है. It is also a source of mineral wealth, and it is also a domain that provides forests, grasslands, land for agriculture and human settlements also. हम रहते हैं ना यहाँ पर? हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं यहाँ पर? Yes, ma'am. जिसे ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं. क्लियर? Yes, नाउ यू कैन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर. तो ये पेज पे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था. ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था. ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था. ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था. राइट? सिर्फ लिथोस्फीयर वाला आंसर इंपॉर्टेंट था. तो इस तरीके से अपने नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी. नाउ व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी. Various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans. First point, domain of water with all the water bodies is called a hydrosphere. It is essential, very important, right? Without that, survival of the human beings is not possible. We have already learned that. True or false? Yes, ma'am. The atmosphere. Now we come to only 2 points we have. Now we come to the atmosphere. Atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around. ये एटमॉस्फेयर को कौन होल्ड करके रखता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. कौन होल्ड करके रखता है? Gravitational force of the earth. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. कौन होल्ड करके रखता है? Gravitational force of the earth. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम. हमें किस चीज से बचाता है? फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. एटमॉस्फेयर हमें किससे बचाता है? हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट मतलब बहुत तेज हीट ऑफ द sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. और क्या क्या होता है एटमॉस्फेयर में? Gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produces changing in the weather and climate. अगर एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, तो क्या चेंज हो जाएगा? वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगी. क्या चेंज हो जाएगा? Plant and animal kingdom together make biosphere. Now we come to the biosphere. When animals and when plants combine, तो क्या बन जाता है? Biosphere. क्या बन जाता है? Biosphere. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other and support the Land. So what is biosphere? Plant and animal kingdom together. हम सारे plants को इकट्ठा कर लें. सारे plants को इकट्ठा कर लें और सारे animals को, तो हम उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. क्या कहते हैं? Biosphere. It is a very narrow zone of the earth where what meets? Air, water and land. They interact with each other. Very very important, right? Yes. Important पता चल रहा है मैम क्या पूछेगी क्या नहीं पूछेगी? Yes, ma'am. Now, what is ecosystem? Ecosystem is very important. तो आएगा ही आएगा. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment in which they. Ecosystem कैसे होता है? लर्न कराते हैं. चलो. It is एक तो सिस्टम है. वर्ड यहीं पर दे रहा है. इकोसिस्टम इज अ सिस्टम. इट इज अ System. फिर हम पूछेंगे अपने आप से. सबसे पहले क्या पूछेंगे? इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम है. कैसे फॉर्म होता है? इंटरैक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर. कैसे फॉर्म होता है? Interaction of all the living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment. और कौन से factors हैं? Physical and chemical factors of the environment in which they live. In which they Live. all linked by transfer of energy and material. Everybody is giving or taking transfer of energy and material. Transfer of Energy, material. transfer of energy and Material. transfer of energy and. Material. So let us, have you learned this ecosystem now? So let us give a try. What is ecosystem? It is a, System. it is formed by the interaction of all living organisms and with the physical and the chemical factors of the environment where they live and linked by the transfer of the energy and the material. Now let us explain. Now we'll go to the explanation part. We'll go to the explanation. at an NCC camp that Ravi's class was attending. Okay, it was some camp and Ravi's class was attending the camp.
Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" What did she scream? Downpour मतलब बारिश, कितनी तेज बारिश हो रही है. See, it is a very nice system to say what a heavy downpour. What a heavy. It reminds me of my home in Kerala because Kerala has heavy showers. So it reminds me of my home. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. Okay. Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rain. We see only kikar and sand." लेकिन जैसलमेर वाले ने क्या बोला, हीरा ने क्या बोला? We get no rain. जेसी कहाँ रहती थी? जेसी कहाँ रहती थी? केरला में. केरला में बहुत डाउनपोर होता था. लेकिन हीरा कहाँ रहता था? हीरा कहाँ रहता था? मैम जैसलमेर. हीरा कहाँ रहता था? जैसलमेर. और वहाँ पे उसने क्या बोला, हमें वहाँ पर कोई बारिश नहीं मिलती, हमें तो सिर्फ कीकर एंड साउंड एंड सैंड मिलता है. कीकर एंड सैंड. व्हाट इज कीकर? मैम प्लांट, एक प्लांट होता है जो डेजर्ट में ग्रो होता As far as the eyes can see, but you can also find camels, said रवि. आपको रवि ने क्या बोला? कैमल भी मिलते हैं. कीकर, कैमल और कीकर, कैमल और क्या मिलता है? है. सैंड. Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too. Ravi wondered, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from place to place? Yeah, animals भी अलग है, vegetation भी अलग है. ऐसा क्यों? Are they all related to each other? Yes. Are they all related to each other? Yes. So when is Environment Day celebrated? See, you find it very important on 5th June of every year. On 5th June. So all plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding. Immediate surrounding मतलब यही वाला surrounding जो हमारे आसपास है. क्या है? इसलिए they are interdependent. They are interdependent. एक दूसरे पे interdependent होते हैं. क्या होते हैं? INTER, interdependent. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings from an ecosystem. क्या कह रहा है? ये relation जो living organisms के पास है as well as the relation between the organisms and their surroundings. ये तो हमने ecosystem की definition तो पहले कर ही ली थी. फिर भी ये short में क्या कह रहा है? The relation between the living organisms and the surroundings. There could be an ecosystem of large rainforest also. Ecosystem of large rain मतलब ecosystem of large rainforest मतलब कोई भी रेन फॉरेस्ट में जहाँ पर सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे होंगे तभी तो इकोसिस्टम बनेगा ना. ग्रासलैंड का भी इकोसिस्टम हो सकता है. डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड कैन हैव इट्स ओन इको. व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? इम्पॉर्टेंट है. इन विच गुड्स आर एक्सचेंज. पहले पैसे नहीं होते थे तो होते थे तो मुझे 2 किलो चीनी दे दे, 2 किलो मैं तुझे 4 किलो गेहूँ दे दूंगा. इस तरीके से चीज़ें इधर उधर होती थी. ह्यूमन एनवायरनमेंट. ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ये तो हमें पता है. हम अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं ना. ओपन लैंड थी जहाँ पर बच्चे खेलते थे पर हमने क्या कर दिया, वहाँ पर बिल्डिंग बनाई ना क्योंकि हमें बिल्डिंग की ज़रूरत थी. तो हम ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं. अर्ली ह्यूमन्स अडाप्टेड देमसेल्व्स. अर्ली ह्यूमन्स क्या करते थे? वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही अडाप्ट कर लेते थे. क्या कर लेते थे? क्योंकि वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे. क्या जीते थे? सिंपल लाइफ. ध्यान नहीं है क्या तुम्हारा? एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स थी, वो नेचर से ही पूरी हो जाती थी. लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया लोगों की नीड्स ग्रो हो गई और अलग अलग हो गई. वेरिड मतलब अलग अलग. अब ह्यूमंस ने लर्न करे नए तरीके टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट ऑल्सो. क्या क्या लर्न करा उन्होंने? कैसे एनवायरनमेंट को उन्होंने चेंज किया? मैम पूछेगी. उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा. क्या करा? सेटल लाइफ जीनी शुरू कर दी घर बना के. व्हील इन्वेंट करा. क्या करा? सरप्लस फूड बनाया ताकि रोज मगजमारी ना हो. बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, पैसे एक्सचेंज हुए गुड्स के थ्रू. ट्रेड बिजनेस करना शुरू करा. कॉमर्स बिजनेस एंड कॉमर्स बिजनेस होता है. इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ, इतनी सारी इंडस्ट्रीज बनी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा एक टाइम के बाद. ट्रांसपोर्टेशन और तगड़ा कर दिया क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी इतनी बड़े बड़े गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, टेलीफोन बनाए, मास कम्युनिकेशन करा तो ताकि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन हो जाए. क्या हो जाए? तो अगर मैम कहेगी कि इंसानों ने एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर दिया तो कहाँ से आएगा? क्रॉप से लेकर यहाँ तक आएगा. क्या आएगा?
क्या आएगा? है कि नहीं इम्पोर्टेंट? Yes. और इजी है कि नहीं? Yes. क्रॉप्स इजी है कि नहीं? दर्शिल वीडियो में आ रहे हो, स्माइल तो कर दो, आपके सारे फ्रेंड्स देखेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो कि मेरी वीडियो देखना, मैं अपनी वीडियो में इतने अच्छे से जवाब दे रहा हूँ। तो आप मैम कहेगी आपने एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई किया, तो क्या बताओगे? क्रॉप्स ग्रो करे, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करे, सैटेलाइट जीव, वीर इन्वेंट किया, सरप्लस फूड बनाया, बार्टर सिस्टम इमर्ज किया, बिजनेस बढ़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन आई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाई, हुई ना? हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? अब समझ आया कि गर्मियों में तो वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में पीनट्स या गरम गरम चाय भी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? अब परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। बाहर हो रही है बारिश, बाहर हो रही है बहुत ठंड और आप बैठ के आईसीयू में गोले खा रहे हो तो क्या होगा? बीमार हो जाओगे ना। तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ पर नहीं जी पाएंगे और एनवायरनमेंट को हार्मोनियस वे में यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे तरीके से यूज़ बिना लड़ाई झगड़े के यूज़ नहीं कर पाएंगे। हार्मोनियस मतलब टू हैव पीस। Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses, activities of the people and places they visit. Right? Now ये भी कुछ important नहीं है। पहले क्या गेम्स खेलते थे, हो गया चैप्टर। इकोसिस्टम आ गया हमें। What do you mean by natural environment पता ही है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट पता है ना? कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ह्यूमन और मैन-मेड और नेचुरल। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड सेटलमेंट पता ही है। लिथोस्फीयर पता ही है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक मतलब नेचुरल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। बायोस्फीयर पता है, क्या होता है बायोस्फीयर? So your chapter is completed, right? And I mapped all the important questions. You have to do them and written every day 4/4, so that in the exam you are able to present yourself carefully. And the chapter was, what was the name of the chapter? Environment. I hope you understood it well. I tried my best to explain the chapter. Take care. Bye bye.